In previous classes, we are study about five kingdom type of classification, in which the third one is Protista. Kingdom Protista is a type of kingdom in which mostly unicellular eukaryote microorganisms are included. The term Protista is come from a Greek word protists, means first of all are primary. इसमें वो सारे जो यूनिसेलुलर हैं यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो इसमें प्लेस किया गया है. A common confusion is that the student took all the eukaryotic unicellular microorganism in the kingdom Protista, but it's wrong. कुछ ऐसे एल्गी हैं जैसे क्लेमाइडोमोनास या क्लोरेला, कुछ ऐसे फंजाई हैं, मोस्टली ऐसे फंजाई होते हैं जैसे ईस्ट है, और कुछ ऐसे एनिमैलिया के भी कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिसे इसमें हम प्लेस नहीं करते हैं. Usually they live as a solitary cells as independent, but sometimes they form colony and resemble as like multicellular organization. Predominantly they are water dwelling in nature, means live where there is water. जहाँ water रहेगा वहाँ ये survive कर सकते हैं. The Protista act as a connecting link between prokaryotic kingdom Monera and complex multicellular kingdom of fungi, plantae and animalia. ये कनेक्टिंग लिंक की तरह काम करता है. The Monera is a primitive prokaryotic cells, whereas the Protista is eukaryotic cell. But as like fungi, plant and animal जो कि मल्टीसेलुलर होते हैं, जो प्रोटिस्टा है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन शो करता है, इसीलिए इसे कनेक्टिंग लिंक भी बोला जाता है. जितने भी जो भी प्रोटिस्टा हैं आर रिगार्डेड एज द इंसिस्टर्स ऑफ ऑल मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म. जितने भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म अर्थ पे पाए जा रहे हैं सब ये माना जाता है कि जो प्रोटिस्टा है वो सबके इंसिस्टर्स हैं. जितने भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है सबका फॉर्मेशन इन द इवोल्यूशनरी साइकिल प्रोटिस्टा से ही हुआ है. General characters of kingdom Protista. The first one is habitat. Protista are mostly aquatic organism and live in aquatic habitat like sea, fresh water, and the soil where moisture is present. जहाँ मॉइस्चर अच्छे से रहेगा वहाँ पे ये सर्वाइव करते हैं. सम लीव इन द बॉडी ऑफ एनिमल एज लाइक पैरासाइट, जैसे मोनोसिस्टिस है, इंटरमीवा एंड प्लाज्मोडियम. हम इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे. और मोस्ट ऑफ द प्रोटिस्ट जितने भी हैं वो वाटर ड्वेलिंग इन नेचर है, पानी की सतह पे रहते हैं, प्लैंकटन का फॉर्मेशन करते हैं. नाउ वी आर कम ऑन द स्ट्रक्चर, प्रोटिस्ट स्ट्रक्चर. Protists are simply microscopic in nature and unicellular organism. They vary their shape and size. The cell structure is typically eukaryotic, means a protoplasm is surrounded by a distinct plasma membrane, जो कि यूकैरियोटिक का एक नेचर है जिसमें प्रोटोप्लाज्म पाया जाए और वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सराउंड हो. In addition, some protists have an outer covering which are called pellicle, cuticle, cell or cellulosic wall. The photosynthetic form have a distinct cell wall made up by cellulose. Internally, the cell wall has distinct membrane-bound organelles, which are the general character of eukaryotic cell, जिसमें cell organelles पाया जा रहा हो, as like chromosome, mitochondria, Golgi body, endoplasmic reticulum and ribosome. 80S type of ribosome. You know the basic difference between prokaryotic and eukaryotic. Prokaryotic have 70S type of ribosome, whereas the eukaryotic have 80S type of ribosome. The photosynthetic protist possesses chloroplast with internal thylakoid organelles, mostly इसमें पाए जाते हैं. The next one is
The next one is as like other eukaryotic cells, uh, the protists have nucleus. Nucleus consists of a chromatine, nucleus, nucleoplasm surrounded by a nuclear envelope. The genetic material is a linear DNA. Chromosome possesses a centromere for attaching the spindle fiber during mitosis. जब mitosis होता है इसे हम आगे वाले चैप्टर्स में अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे. सम मोटाइल प्रोटिस्ट मीन्स ऐसे प्रोटिस्ट जो कि लोकोमोशन करते हैं, उनके पास फ्लैजिला एंड सीलिया प्रेजेंट होते हैं एज लाइक लोकोमोटरी ऑर्गन, एंड मोस्टली दे आर सो 9+2 अरेंजमेंट means an internal cylinder, the 9 doublet fibrils in the periphery and a pair of singlet fibrils in the center. जो 9 नंबर में पेरिफेरल फाइब्रिल्स होते हैं और सिंगल एक जो पेयर में होता है वो सेंटर में होता है. द फाइब्रिल्स आर फाइनली मेड अप बाय प्रोटीन ट्यूबुलिन. ये ट्यूबुलिन से फॉर्म होते हैं और ये हेल्प करते हैं मोस्टली फॉर द लोकोमोशन. The next topic is locomotion in protists. Locomotion is the movement of an organism or its part from one place to another. ये हम पहले से जानते हैं कि लोकोमोशन एक मूवमेंट होता है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म या उसका पार्ट एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर सके. Motile protists move from one place to another place with the help of pseudopodia, flagella, cilia. Sometime a few they move by wriggling method, means creeping type of locomotion, and mucilage propulsion mechanism, which are described one by one. The first one is locomotion by pseudopodia. Some protists slowly creep over the substratum with the help of a blunt finger shaped protoplasmic extension called pseudopodia. ये उनका साइटोप्लाज्म ही होता है जो एक ब्लंट फिंगर से स्ट्रक्चर लेता है और जिसके थ्रू ये क्रीप करते हैं, जस्ट लाइक नेरिस ये क्रीपिंग मैकेनिज्म को शो करते हैं. द रेट ऑफ मूवमेंट इज अबाउट 0.2 to 3 माइक्रोन मीटर पर सेकेंड. एक सेकेंड में ये 0.2 to 3 माइक्रोन मीटर का मूवमेंट करते हैं. एंड द ऑर्गेनिज्म विच आर शो द लोकोमोशन बाय pseudopodia is mostly irregular in shape as like sarcodians and amoeba. Pseudopodia are of 4 types. The first one is lobopodia. Lobopodia means a lobe-like big broad and blunt end, जिसमें कि एक ब्लंट एंड का फॉर्मेशन हो, एक फिंगर लाइक अपीयरेंस हो, वो लोबोपोडिया है. जैसे अमीबा. फिलोपोडिया मीन्स फिलामेंटस टाइप ऑफ स्यूडोपोडिया, मीन्स जिसमें थ्रेड लाइक स्यूडोपोडिया है लेकिन वो ब्लंट एंडेड है. यूग्लाइफा. एक्जोपोडिया मीन्स अ लॉन्ग एंड स्टिफ बिट अ हार्ड एक्सियल फिलामेंट, मीन्स जिसमें कि एक हार्ड एक्सियल लॉन्ग फिलामेंट हो जो कि एक्टिनोफ्रिक्स में पाया जाता है. द लास्ट वन इज रेटिकुलोपोडिया, मीन्स अ लॉन्ग एंड ब्रांच फॉर्मिंग नेटवर्क ऑफ स्यूडोपोडिया. ग्लोबिगेरिया में ये पाया जाता है. हेयर द फिगर ऑफ ऑल 4 टाइप ऑफ स्यूडोपोडिया: लोबोपोडिया, फिलोपोडिया, एक्जोपोडिया एंड रेटिकुलोपोडिया. The next one is locomotion by flagella. Flagella are a motile and hair-like appendages which project from the free surface of the cell. Hair-like appearance होता है. आप पैरामीशियम इसको इसको यूग्लिना में आप इजिली शो कर सकते हैं, हम देख सकते हैं. यूग्लिना में ये लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है. The external and long beak-like part of flagella is called shaft. जो भी फ्लैजिला होता है वो उसके 2 साइड होते हैं. एक इंटरनल
होता है इंटरनल साइड, जो कि किसी भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बॉडी के इनसाइड होता है, और जो बाहर होता है उसे एक्सटर्नल कहते हैं, बीप लाइक पार्ट होता है। और अगर फ्लैजिला के थ्रू लोकोमोशन होता है तो ये जो एक्सटर्नल पार्ट ऑफ फिलामेंट है, एक्सटर्नल पार्ट ऑफ फ्लैजिला है, उसी के हेल्प से ये होता है। इट वैरीज लेंथ फ्रॉम 2 माइक्रोन टू 3 mm in diameter. The internal structure of flagellum consists same 9+2 arrangement, means the 9 peripheral fibrils on the periphery and the 1 pair in the center. Most flagella exhibit undulating movement. अनडुलेटिंग मूवमेंट मतलब कि वो अपोजिट डायरेक्शन में पहले बैक होते हैं फिर बीट करते हैं, एंड इस तरीके से जो मूवमेंट होता है इसमें रेट ऑफ मूवमेंट लगभग 15 to 300 माइक्रोन मीटर पर सेकेंड होता है, जैसे यूग्लिना, लेशमैनिया। नेक्स्ट वन इज लोकोमोशन बाय सीलिया. सीलिया इज अ शॉर्ट फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑल ओवर द बॉडी. आप इसको पैरामीशियम में इजली सी कर सकते हैं. हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं ऑल ओवर द बॉडी, और ये अगर फ्लैजिला से इसको कंपेयर किया जाए तो ये फ्लैजिला से मच स्मॉलर होते हैं एंड लार्ज इन नंबर होते हैं. दे आर परफॉर्म ओर लाइक मूवमेंट. ओर लाइक मूवमेंट मीन्स लोकोमोशन इन सीलिया. इसमें नियरली 15 to 300 माइक्रोन मीटर पर सेकेंड के हिसाब से लोकोमोशन होता है. द नेक्स्ट वन, इसमें सीलिया के थ्रू जो लोकोमोशन होता है इसमें जैसे आप देखेंगे जो नाव होता है, जो बोट है, उसका जो चप्पू होता है मतलब आगे से पीछे की तरफ पुश करता है. सेम एज यहाँ पे भी प्रोसेस होता है. मैनर लाइक अ ग्रुप ऑफ पर्सन रोइंग अ बोट एंड प्रोड्यूस अ aggressive wave by beating in succession. The next one is wriggling locomotion. wriggling locomotion ये एक slow worm like movement होता है जिसमें जो नॉन फ्लैजिलेटिक प्रोटिस्ट होते हैं, नॉन सीलिएटिक प्रोटिस्ट होते हैं, उसमें होता है. इसमें वेब का कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन होता है बॉडी में. क्रीपिंग एनिमल जितने भी आप देखोगे, जैसे नेरिस है, वो अपने बॉडी को पहले एक जगह स्टिक करता है, देन पीछे वाले बॉडी को आगे करता है, देन आगे वाले पार्ट को स्टिक करता है. सेम प्रोसेस में इसमें भी होता है लोकोमोशन. स्पोरोजोन्स इज द बेस्ट एग्जांपल विच आर सो wriggling लोकोमोशन. नेक्स्ट वन इज लोकोमोशन बाय म्यूसिलेज प्रोपोल्सन. इसमें कुछ प्रोटिस्ट ऐसे होते हैं लाइक डायटम्स, ये अपने बॉडी से एक्सक्रीट करते हैं सॉफ्ट म्यूसिलेज सेम उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में इनको मूवमेंट करता है, और फिर ये क्रीपिंग एंड रोलिंग टाइप ऑफ मूवमेंट शो करता है, सेम एज अ क्रीपर्स जितने होते हैं उनके हिसाब से. द नेक्स्ट टॉपिक इज द न्यूट्रिशन इन प्रोटिस्ट. Kingdom protists included diverse type of unicellular organism which either their nourishment from the surrounding or preparing their own food. The organism perform the following mode of nutrition: just photosynthetic in nature, holozoic in nature, saprophytic in nature, parasitic in nature, and the mixotropic in nature. The first one is photosynthetic in nature, जिसको होलोफाइट न्यूट्रिशन कहते हैं. इसमें हम उन प्रोटिस्ट को रखेंगे जो जिनके पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट हो, क्लोरोफिल प्रेजेंट हो, और जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना कार्बोहाइड्रेट फूड या एनर्जी सोर्स को खुद फॉर्म कर सकें, जैसे यूग्लिना एंड जिम्नोडिनियम. नेक्स्ट वन इज होलोजोइक. होलोजोइक न्यूट्रिशन मीन्स एक जो इंडिविजुअल अपने फूड के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड हो, इनको हम होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं. तो इसमें जैसे अमीबा है या पैरामीशियम है, ये दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होते हैं. वो उसको कैप्चर करेंगे, इंजेस्ट करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे एंड एसिमिलेट करेंगे. वो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है, कोई प्लैंकटन हो सकता है. The next one is
सैप्रोबिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन और सैप्रोफिटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। हम जानते हैं कि सैप्रोफाइट जितने भी होते हैं, जो जितने सैप्रोफाइट हैं वो अपने नरिशमेंट के लिए डिपेंड होता है डेड एंड डिके मटेरियल पे। इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन द प्रोटिस्ट लीव अपॉन द डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। ये उसमें से ऑब्जर्व करते हैं पहले ये कुछ ऐसे एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम को सराउंडिंग में सिक्रीट करते हैं, जिसकी वजह से कि जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर है उसका ब्रेक डाउन हो जाए, देन इसको ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जैसे जितने भी स्लाइम माउल्ट्स होते हैं वो इसमें रखे जाते हैं। नेक्स्ट वन इज पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मीन्स इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन जितने भी प्रोटिस्ट होते हैं वो नरिशमेंट के लिए अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर सीधा डिपेंड होते हैं, जैसे मोनोसिस्टिस है, प्लाज्मोडियम है, जियार्डिया है, एंटामीबा है। आप लोग प्लाज्मोडियम के बारे में जानते भी होंगे कि ये एक मलेरिया पैरासाइट है जो कि मॉस्किटो और ह्यूमन में अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है। सेम एज एंटामीबा हिस्टोरिका है जो कि डायरिया काज करता है, ये भी एक पैरासाइट है। नेक्स्ट वन इज मिक्सोट्रॉपिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। In this mode of nutrition, the protists obtain their nourishment by more than one method at the same or at different time. This is changed by their external condition. अगर एक्सटर्नल कंडीशन जो इनके है, इनके फेबर में हुआ तो ये अपने फूड को खुद फॉर्म करेंगे, नहीं तो ये फिर होलोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी शो करते हैं। फॉर एग्जांपल यूग्लिना अपना न्यूट्रिशन एज अ होलोजोइक, होलोफिटिक एंड सैप्रोबिक मेथड तीनों से ऑब्टेन करता है। फैकल्टेटिव हेट्रोटॉप्स भी ये है, अगर प्रॉपर कंडीशन है इसके पास सर्वाइवल के लिए तो ये अपना फूड खुद फॉर्म करेगा, नहीं तो ये फैकल्टेटिव पैरासाइट भी है, ये किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड भी हो सकता है। द नेक्स्ट टॉपिक इज रिप्रोडक्शन इन प्रोटिस्ट लाइक अदर ऑर्गेनिज्म। The protists show both mode of reproduction, means asexual mode of reproduction and sexual mode of reproduction. In general एक बेसिक डिफरेंस दिया जाता है asexual mode of reproduction and sexual mode of reproduction में। जो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है उसमें किसी भी तरीके के गैमीट का फॉर्मेशन नहीं होता है, किसी भी तरीके के जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं होता। जबकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें स्पेशल टाइप ऑफ सेक्स सेल का फॉर्मेशन होता है जिसे गैमीट बोलते हैं। तो पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ते हैं। इस रिप्रोडक्टिव मोड में जो प्रोटिस्ट होता है in which the genetic constitute of young ones remain the same as that of parent, एक कॉपी बनती है उसमें asexual mode of reproduction में जो जेनेटिक मैटर होता है उसकी, और जो यंग होता है वो सेम देयर पेरेंट्स होता है। different mode of asexual reproduction are found in protists. First one is binary fission. Binary fission means equal fission. The parental cell are divided into two equal daughter cell by mitosis. Paramecium and Euglena is the example of binary fission. इसमें ट्रांसवर्सली भी डिवीजन हो सकता है, लॉन्गिट्यूडिनली भी हो सकता है, एक्सियल भी हो सकता है। द नेक्स्ट वन इज मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन मीन्स जो पेरेंट है वो इसका डिवीजन होता है किसी भी डॉटर सेल में तो वो मल्टीपल डिवीजन करे, एक से अधिक में ब्रेक हो जाए उसकी बॉडी, और ईच जो है वो हर पार्ट जो है वो ग्रो करके वापस एक न्यू ऑर्गेनिज्म को फॉर्म कर ले, तो ये मल्टीपल डिवीजन कहलाता है, जैसे प्लाज्मोडियम है। द नेक्स्ट वन इज प्लाज्मोटोमी। प्लाज्मोटोमी आर जनरली फाउंड इन द मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रोटिस्ट। ऐसे प्रोटिस्ट जो मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं जैसे ओपैलिना, इसमें जो फिजन होता है वो प्रोटिस्ट का वो फिर 2 और मोर मल्टी न्यूक्लिएटेड ऑफ स्प्रिंग होता है, जिसमें साइटोप्लाज्म का जो डिवीजन होता है विदाउट न्यूक्लियर डिवीजन, इसको प्लाज्मोटोमी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ओपैलिना। नेक्स्ट वन इज बडिंग। इट इज अ सिंपल मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक स्मॉल बड का फॉर्मेशन होता है पेरेंटल बॉडी पे, जो बाद में सेपरेट हो जाता है और डेवलप करता है न्यू इंडिविजुअल में, जैसे पैराकाइनेटा है।
लास्ट वन इज स्पोर फॉर्मेशन। जो स्पोर होता है इसमें एक थिक वॉल्व कवरिंग के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो प्रिजर्व होता है, और जब फेवरेबल कंडीशन आता है तो ये जर्मिनेट करता है और फिर वापस ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है। जो ये थिक वॉल कवरिंग होती है ये टेम्परेचर रेजिस्टेंस होती है, ये हीट रेजिस्टेंस होती है, ये एसिड रेजिस्टेंसी भी शो करती है कुछ हद तक। इसलिए जितने भी अनफेवरेबल कंडीशन होते हैं उसमें ये सिक्योर रहता है, और जैसे ही इसको फेवरेबल कंडीशन हुआ है, मॉइस्चर इसको मिला और टेम्परेचर इसके सर्वाइवल के अकॉर्डिंग हुआ, ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करती है, देन स्वेल करती है, और ये जो थिक वॉल कवरिंग है वो ब्रेक डाउन होती है, और जो स्पोर्स इसमें होते हैं वो जो जेनेटिक मटेरियल वो जर्मिनेट करके न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर लेता है। जैसे स्लाइम मोल्ड्स होते हैं उसमें ये होता है। द नेक्स्ट वन इज सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। Sexual reproduction is believed to have originate in primitive protists in which मियोसिस, अगर मियोसिस हम एक छोटा सा यहाँ पे माइटोसिस और मियोसिस के बीच में अगर डिफरेंस बताएं तो माइटोसिस मीन्स द डिवीजन इन विच जेनेटिक मटेरियल या क्रोमोसोम का जो नंबर होता है वो डॉटर सेल और मदर सेल में इक्वल होता है, जबकि मियोसिस में जो डॉटर सेल होती है उसमें आधा हो जाता है एज कम्पेयर टू देयर मदर सेल या जो उसके पेरेंटल सेल है। जैसे 2n अगर डिप्लॉयड इन नेचर है तो 2n ऑफ क्रोमोसोम इन पेरेंट सेल बिकम 1n मीन्स हैप्लॉयड नंबर ऑफ गैमीट। जो ये हैप्लॉयड नंबर ऑफ गैमीट बना, जो 1n टाइप ऑफ सेल बना, इसी को स्पेशल सेक्स सेल बोलते हैं, जिसे कि हम गैमीट भी बोलते हैं। मेल गैमीट और फीमेल गैमीट में ये फिर आइडेंटिफाई होता है हायर ऑर्गेनिज्म में। देर आर द टू गैमीट हैविंग n नंबर इन क्रोमोसोम, मतलब जो हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम है ये जब फ्यूज करते हैं तो फॉर्म करते हैं डिप्लॉयड 2n जाइगोट। अगर हम हायर एनिमल्स या प्लांट की बात करें तो यहाँ पे इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, लेकिन इन द प्रोटिस्ट इसे हम सिंगामी बोलते हैं। तो फ्यूजन ऑफ गैमीट इज कॉल्ड सिंगामी, like monocytes, ceridium and plasmodium. नेक्स्ट वन इज मेजर ग्रुप ऑफ प्रोटिस्ट, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।